Okay, students, we are starting the past paper of differentiation from your past paper file. It's from the first question is from February March 17, and the question given is the curve with equation. The curve with equation this where a is positive constant has only one point in the interval from 0 to half pi at which the tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis means the gradient is 0. Means the gradient is 0. Find the value of a and state the exact value of the x coordinate of this point. Working start करते हैं जनाब. It is y equals to e power minus ax tan x. अब आप देखिए इस पर u into v का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, राइट? सो u is e power minus ax and v is tan x. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो u डैश क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स और v डैश क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स. ऐसा ही. नाउ सो y डैश विल बी u the derivative of v sec square x plus v the derivative of u minus a e की पावर minus ax. Now अगर अरेंज करना चाहें e की पावर minus ax कॉमन, in the bracket we have sec square x minus a tan x. ऐसा ही. Now as we know that the gradient is equal to 0 because the tangent is parallel to x-axis. Because the tangent is parallel to x-axis, so it means e power minus ax is 0 and sec square x minus a tan x is equal to 0. दोनों ब्रैकेट्स को हमने अलग अलग 0 से इक्वेट कर दिया, राइट? ये तो नॉट पॉसिबल टू सॉल्व हो गया बिकॉज टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. 0 का लॉग पॉसिबल है नहीं. यहां पर आएंगे, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आना पड़ेगा हमें पहले. तो सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के इक्वल. सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? देखें, ये आइडेंटिटी तो आपको याद है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी तो आपको याद है. ऐसा ही सेक अगर हमें बनाना है, सेक कैसे बनता है जनाब? अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे? सेक किसका इनवर्स है? कॉस का. तो सबको डिवाइड कर दीजिए आप कॉस स्क्वायर एक्स. सबको डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स से. कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? तो जनाब साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स. आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट? माइनस a tan x equals to 0. So now tan square x minus a tan x plus 1 equal to 0. आपसे क्या कहा गया? इसमें आपसे कहा गया जनाब at which the tangent find the value of a and say the exact value of the x coordinate of this point has only one point in the interval. सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारे पास, और एक ही पॉइंट अगर होता है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल. वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल. तो क्या मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac equals to 0. And what is the value of b? The value of b is minus a minus 4. What is the value of a? 1. What is the value of c? 1 equal to 0. A squared equals to 4. And what is the value of a? The value of a is 2. The value of a is 2 because a is positive. Because a is positive. तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई. अब आपसे क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट. तो जनाब इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? द इक्वेशन विल बी tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया जनाब? tan x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. tan x
equals to -1 and the value of x is tan x equals to -1 and the value of x is tan inverse of 1. tan inverse of 1. tan नेगेटिव कहां पर होता है? फर्स्ट में. और sorry, here it is this one, right? So now tan x equals to 1 and the value of x is 45, which is equals to pi by 4. Are you clear? This is the exact x, state the exact value of the x coordinate. So the exact value of x coordinate, the value of x is pi by 4. A question of 7 marks. Now, question number 2 is a question of parametric equation from May June 17, paper 3-1. The two equations are here. The first equation is of x and the second equation is of y. We have to calculate dy over dx. Now, in the first part, what we have to do, dx over d theta. log के साथ डिफरेंशिएशन कैसे होता है? अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा. sin अपॉन cos क्या हो गया? माइनस tan थीटा. ये तो फर्स्ट dx over d theta हमने कैलकुलेट कर लिया. एंड आफ्टर दैट dy over d theta. dy over d theta will be 3 theta is 3 minus tan theta is sec square theta. आपसे क्या कहा गया है? आंसर लिखना है हमें किस फॉर्म में? tan थीटा में. तो इस sec square थीटा को भी मैं जरा सॉल्व कर लूं. क्या मैं लिख सकता हूं sec square थीटा को tan square थीटा प्लस 1, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया. सो नाउ 3 minus 1 is 2 minus tan square थीटा, ये आ गया आपके पास. ऐसा ही? Yes or no? Now we have to calculate dy over dx. dy over dx. So dy over dx, तो dy वाली वैल्यू ऊपर और dx वाली वैल्यू नीचे. So it will be minus tan theta. मैक्सिमम क्या हो सकता है? हम माइनस कॉमन ले ले ऊपर से, ताकि नीचे का माइनस भी खत्म हो जाए. डिवाइडेड बाय tan theta. This is dy over dx in terms of tan. Are you clear? Second part. Find the exact y coordinate of the point on the curve at which the gradient of normal is equal to 1. If the gradient of normal is equal to 1, then the gradient of tangent is equals to -1. dy over dx is the gradient of tangent. So now dy over dx क्या है? tan square theta minus 2 divided by tan theta equals to -1. So tan square theta minus 2 equals to minus tan theta, and tan square theta plus tan theta minus 2 equal to 0. What are the two values of tan? क्या है पहली वैल्यू? 1 and -2. tan positive theta equals to 45 pi by 4 minus 2 tan negative. लेकिन हमें रहना कहाँ है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है. So this is the result. This is the result. Clear? Any confusion? Find the exact y coordinate. The theta is pi by 4. Therefore, the y coordinate will be 3 pi by 4 minus tan theta is 1. So the answer will be 3 pi by 4 minus 1. This is the final y coordinate. क्या कहा है? Exact y coordinate. तो हम डेसिमल में नहीं लिख सकते. यही हमारा आंसर होगा. हो रहा है. Now, question number 3. It's from May June 17, paper 3-2. In the first part, again, it's a question of parametric equations. First, we have to differentiate the first equation. So dx over dt will be 2t, and dy over dt will be 4 plus 2t minus 1, and here it is 2. So now we have to calculate dy over dx. I'm taking LCM of this. So it will be 2t minus 1. This will be 2t multiplied by 4 is 8t minus 4 plus 2. And finally, it will be 8t minus 2 divided by 2t minus 1. अब आप देखिए dy over dx according to chain rule.
The dy over dx is 8t minus 2 divided by 2t minus 1 multiply by 1 over dx. 1 over dx is 1 over 2t. ऊपर से अगर 2 कॉमन लेते हैं 8t माइनस 2 में से, तो क्या हो जाएगा 4t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2t माइनस 1, और साथ में इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, जो कॉमन लिया था क्या रह गया, सिर्फ t रह गया. एनी कंफ्यूजन? क्लियर? आगे देखिए अब. This is dy over dx in terms of t. After that, what we have in the second part, find the equation of the normal where t is 1. Where t is 1. So dy over dx, where t is 1, it will be 4 minus 1 divided by 2 minus 1 into 1. So it is 3. So gradient of normal will be minus 1 over 3. And the coordinates will be, अगर t को 1x में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2, और y में जब रखते हैं t को 1 तो कितना हो जाएगा 4, और सेकेंड ln 2t माइनस 1 तो हो गया खत्म. राइट? अब आइए, ये कोऑर्डिनेट, ये ग्रेडियंट बाय यूजिंग y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 4, 4 3 12 minus x plus 2, and 3y equals to minus x plus 14, and we have to write in the form of x plus 3y minus 14 equal to 0. This is the final form of the answer. Clear? Now students, question number 4 is from May June 17, paper 3-3. We have to differentiate the question or answer लेकर आना है in terms of 10, right? So now, in the first part, dy over dx is equals to 2 over 3 ऐसे ही रहा. ln का डिफरेंशिएशन कैसे होता है जनाब? ln के साथ जो भी एलिमेंट है वो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आएगा. 1 plus 3 cos स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या हो जाएगा 6 cos x माइनस साइन x. 6 cos x, 1 का डेरिवेटिव 0, 3 cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 6 cos x, बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, राइट? सो इट विल बी 3 2s are 6, here it is 2 2s are 4, cos multiply minus 4 sin x cos x divided by 1 plus 3 cos square of x divided by 1 plus 3 cos square of x. अब आप देखिए हमें किस में लेकर आना है, इन टर्म्स ऑफ 10. इन टर्म्स ऑफ 10 लेकर आना है. एक चीज ध्यान में रखिए बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी डिस्कस की हम लोगों ने ऊपर. सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना जनाब? अब आइए कुछ वर्किंग करते हैं. हमें टेन में कन्वर्ट करना है, तो टेन में कन्वर्जन के लिए साइन अपॉन कॉस होना चाहिए. नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स. नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स. अगर हम वर्किंग करते हैं और इसको टेन में कन्वर्जन के लिए डिवाइडेड बाय कॉस करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले मैं डिनोमिनेटर पे काम करूं जरा. डिनोमिनेटर पे वर्किंग कर रहा हूं, और डिनोमिनेटर को मैं कैसे लिख रहा हूं जनाब? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे? कॉस स्क्वायर एक्स. किससे डिवाइड कर दिया इसको मैंने? कॉस स्क्वायर एक्स से. इसको डिवाइड कर दिया जनाब कॉस स्क्वायर एक्स से. अब क्यों मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं इसका एलसीएम ब्रेक करूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स नियर होता है किससे? टेन से. ये मेरे जहन में है, राइट? लेकिन ऐसे डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो न्यूमरेटर को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा. न्यूमरेटर क्या है? माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया जनाब? कॉस स्क्वायर एक्स. अब सुनिएगा, कैंसिलेशन के बाद क्या वर्किंग होगी? कॉस से ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? साइन अपॉन कॉस
10 आ गया ऑटोमेटिकली, ऊपर आ गया जनाब 10। अब मैं लिख रहा हूं -4, न्यूमरेटर तो 10 में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, 1 अपॉन, एलसीएम ब्रेक किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 3, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो। अब आप देखिए, हमें जो हमने प्रीवियस आइडेंटिटी डिस्कस की थी कि सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है जनाब, कहां प्रूफ किया था हमने, हियर, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 के। उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली अब हम वर्किंग कर रहे हैं। -4 टेन एक्स डिवाइडेड बाय, सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं किसके इक्वल, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो जनाब ये क्या हो गया, -4 टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, एंड दिस इज द रिजल्ट। ओके, कहा गया इस स्टेप को दोबारा से हमें डिस्कस करना है। ओके, अब देखिए, पहले हमने डिनोमिनेटर को फोकस करके स्टेप डिस्कस किया था, अब न्यूमरेटर को फोकस करके स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, जिससे इजीली क्लियर हो जाए, वो ध्यान में रख लीजिए, राइट। सुना, अब आप देखिए, हमें चाहिए न्यूमरेटर में 10। न्यूमरेटर में 10 कैसे आएगा, न्यूमरेटर लिखा हुआ है -4, न्यूमरेटर लिखा हुआ है -4, now the numerator is -4 sin x cos x। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं cos x से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, cos x से, तो cos से cos कैंसिल, साइन बच गया। तो मैंने फिर cos स्क्वायर x से डिवाइड किया ताकि cos से इसकी पावर कैंसिल हो, और साइन अपॉन cos बचे तो बन जाए वो tan। ऐसे न्यूमरेटर को हम किसी एक एलिमेंट से डिवाइड कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दिया, 1+3 cos स्क्वायर एक्स को किससे डिवाइड कर दिया जनाब, cos स्क्वायर एक्स से। नाउ इट इज अलाउड इन मैथ्स, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब डिवाइड हुए तो कैंसिलेशन के बाद साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10, और यहां पर एलसीएम ब्रेक किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज the answer of the first part in terms of 10. In the second part, what we have to do, hence find the x coordinate of the point on the curve where the gradient is -1, where the gradient is -1। gradient किसका, टेंजेंट का ग्रेडियंट, नॉर्मल का ग्रेडियंट, या कर्व का ग्रेडियंट। अगर सिर्फ ग्रेडियंट लिखा हुआ है तो कर्व का है, और जो कर्व का ग्रेडियंट होता है वही तो dy/dx होता है, राइट। सो नाउ कैन आई से दैट द dy/dx इज इक्वल्स टू -1। So now -4 tan x divided by tan square x plus 4 equals to -1। Minus and minus cancel out. 4 tan x equals to tan square x plus 4. And now tan square x -4 tan x -4 tan x plus 4 equal to 0. What are the two values of tan? What are the two values of tan? tan की क्या वैल्यू, a की वैल्यू आ रही है, tan की एक वैल्यू आई 2। द वैल्यू ऑफ tan इज 2, एक ही वैल्यू आ रही है tan की। नाउ हमें कैलकुलेट करना है एंगल अप टू 90 डिग्रीज, अप टू π/2। सो जस्ट द बेसिक एंगल, tan इनवर्स ऑफ 2 इज इन रेडियंस, $1.11. 1.11। दिस इज द रिजल्ट।
Are you clear? Clear? Question number 7 is of October November 16, paper 3-3. The equation of the curve is this. Show that the gradient of the curve is positive. Gradient of the curve is positive. हमें differentiate करना है और prove करना है कि gradient of the curve positive है. तो जनाब u upon v का फॉर्मूला applicable होगा यहाँ पर. u is sin x and v is 1 plus cos x. तो u dash क्या हो गया? Cos x and v dash is minus sin x. So y dash will be v, the derivative of u, minus u, the derivative of v, over v square. V is 1 plus cos x whole square. Now, it will be cos x into 1 cos x plus cos square x plus sin square x divided by 1 plus cos x whole square. कोई confusion? Sin square x plus cos square x is 1. So 1 plus cos x divided by 1 plus cos x whole square. कोई confusion? After cancellation, I can say that y dash is 1 upon 1 plus cos x. 1 upon 1 plus cos x. Any confusion up to this? Now, अब आप देखिए, this y dash depends on this y dash depends on cos x. जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर इक्वेशन डिपेंड करती है. And this y dash depends on cos x, right? And cos x and cos x, cos is positive in first and fourth quadrant, hence proof. नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है, बिकॉज cos is positive in the first and the fourth quadrant. cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये इक्वेशन डिपेंड कर रही है cos पर. तो जिस पर डिपेंड कर रही है अगर वही पॉजिटिव रहे और सारी चीजें प्लस के साथ हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. आर यू क्लियर? दैट्स एक्सीलेंट. क्वेश्चन ऑफ 4 marks. Now, question number 8. It's from February March 16, paper 3-2. Find dy over dx of the given equation. Start करते हैं जनाब. ये जो इक्वेशन लग रही है, it's like what? Implicit functions. सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है कोई इसमें. Implicit function की इक्वेशन लग रही है. तो how to solve the implicit function क्वेश्चन जिसमें हम सब्जेक्ट ना बना सके, जरा चेक करते हैं. u इंटू वी का फॉर्मूला इस पर एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंगली हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पर इन द फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं देखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज u? u इज साइन y एंड व्हाट इज v? v इज ln x. u डैश इज cos y and v dash is 1 upon x. So y dash will be, अच्छा, cos y, y dash. Implicit function में आपको क्या बताया गया था? जब भी y को डिफरेंशिएट करें साथ में क्या आ जाता है? y dash आ जाता है. साथ में y dash आ जाता है, राइट? y स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y y dash. y क्यूब को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर y dash and so on, right? Same like that, sin y is cos y y dash. Clear? Now, अब आइए, तो y dash क्या हो जाएगा जनाब? u, the derivative of v plus v, the derivative of u, cos y y dash. अगर अरेंज करके लिखते हैं इसको तो 1 upon x sin y
प्लस ln x cos y y डैश। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर वर्किंग करते हैं। राइट हैंड साइड पर अगर वर्किंग की जाए, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 साइन का डेरिवेटिव cos y, साथ में y डैश। राइट हैंड साइड सिर्फ यही है। नाउ एज वी नो दैट द लेफ्ट हैंड साइड is equals to the right hand side, so the left hand side is 1 upon x sin y plus ln x cos y y dash equals to 1 minus 2 cos y y dash। y dash वाले को लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहा हूं मैं, तो क्या हो गया 2 cos y y dash प्लस ln x cos y y dash equals to 1 minus sin y over x। इस टर्म को मैं राइट साइड पर लेकर चला गया। नाउ y डैश कॉमन, सो इट विल बी 1 माइनस, अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा x माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय x, और y डैश कॉमन लेने के बाद क्या चीज बची, वो सब डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 2 cos y प्लस ln x cos y। ये आपके पास y डैश सब्जेक्ट बन गया, dy और dx कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, राइट। आगे क्या कह रहे हैं, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट x कोऑर्डिनेट at which the tangent is parallel to x-axis. If the tangent is parallel to x-axis, then y dash equals to 0, and if y dash equals to 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हुआ, क्या बचा सिर्फ x माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। क्या बचा जनाब, x माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट x कोऑर्डिनेट। हमें x कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस कंडीशन पर, जबकि ग्रेडियंट 0 हो जाए। तो क्या मैं लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू किसके है, साइन y के बराबर। x किसके बराबर है जनाब, साइन y के इक्वल है। x साइन y के इक्वल है। अब हमें कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट x कोऑर्डिनेट। अब एग्जैक्ट x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, x की वैल्यू साइन y को क्वेश्चन में रख दें। x की वैल्यू साइन y को क्वेश्चन में रख दें। अब सुनिएगा, हमें बच्चों x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। अगर मैं x की जगह साइन y लिखता हूं तो हर चीज y में कन्वर्ट हो जाएगी, हर चीज y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। हमें y की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो अब हम साइन y को रिप्लेस करेंगे किससे, x से, ऑफ द क्वेश्चन। साइन y को रिप्लेस करते हैं x से, तो क्या हो जाएगा, x ln x इक्वल टू x माइनस 2x। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम जनाब। x ln x इक्वल टू x माइनस 2x इज माइनस x, x ln x प्लस x इक्वल टू 0, x कॉमन, ln x प्लस 1 इक्वल टू 0। बाय दिस द वैल्यू ऑफ x इज, एक तो 0 हुई और एक ln x प्लस 1 इक्वल टू 0। ln x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू क्या हो गई, e पावर माइनस 1, और x की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन e। x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x को 0 यहां रख दिया जाए तो ये जो ln x वाली टर्म है ये सॉल्व नहीं हो सकती, बिकॉज log 0 एंड log नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो जनाब इसको तो रिजेक्ट कर दिया हमने, और यहां से ln x प्लस 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और x की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ गई हमारे पास, 1 अपॉन ई आ गई। हमें एक्चुअली एग्जैक्ट चाहिए तो डेसिमल में हम लिखेंगे नहीं। आर यू क्लियर।